Hello friends, welcome to the channel. Today we'll study about the vitamins. So what are vitamins? Vitamins are the organic compounds. We use them in trace amounts, है ना? Specific cellular functions के लिए they are used. मतलब they are used as coenzymes. You know, coenzymes are like they are present in the active site of an enzyme. For example, this is an enzyme and this is the active site. So here they are present in the active site of the enzymes. ठीक है? They are important for metabolism. So there are two type of vitamins. They are water soluble and they are the fat soluble. The water soluble are the vitamin B complex and vitamin C complex, and the fat soluble are vitamin A, E, D and K. Okay, and they are fat soluble. So the जो complex B है, it is wholly, मतलब कि all the types of the B complex are used as coenzyme, whether C is not used as coenzyme, है ना? And the fat soluble only K is used as coenzyme. ठीक है? So today we'll discuss first about the वाटर सोल्यूबल. सो वाटर सोल्यूबल जो कि पानी में घुल जाएंगे, है ना? दे आर ऑफ टू टाइप, बी एंड सी. सो द फर्स्ट इज थायमिन, द बी वन वाइटामिन. ओके, इसकी बायो एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? थायमिन पायरोफॉस्फेट्स. ठीक है, थायमिन pyrophosphate. So how it is formed? There is a ring which is known as thiazole ring. Okay, and the second ring is amino pyrimidine ring. And these both rings are connected by a methyl bridge, है ना? We use ATP in the formation of this, and the enzyme which is known as thiamine pyrophosphate synthetase, है ना? Synthetase enzyme is used because here we are using ATP, so the enzyme synthetase is used. Any chemical reaction where is synthase is used, है ना? There is no involvement of energy currency, but here is the involvement of the energy currency. That is why we use here synthetase. Okay, so for production of the TPP, that is thiamine pyrophosphate, occurs. Now its function is it act as coenzyme in oxidative decarboxylation reaction, है ना? Oxidative decarboxylation reactions में they are used, and it is also known as anti-beriberi vitamin because in the deficiency of this vitamin beriberi diseases happen. So beriberi जो है, they are of many type. There is wet beriberi, है ना? There is dry beriberi, there is infant beriberi, है ना? There is many type of beriberis are there. So the second vitamin is the B2 vitamin, that is riboflavin. So riboflavin is the component of FMN and FAD. So what is FMN and FAD? Flavin mononucleotide, mononucleotide and monophosphate, adenine dinucleotide. And this FAD is flavin adenine diphosphate. Okay, so how they are formed? There is a ring which is known as isoalloxazine ring and ribitol. जब हम इसमें ATP का यूज़ करते हैं तो इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है ना? Phosphate is connected to it and it produces FMN. Okay, and when there is FMN connected, we deliver ATP. Here it attached, here is there is no phosphate, there is AMP, है ना? So the production of FAD is occur. मतलब इसमें अगर phosphate जुड़ रहा है ना, this is the phosphate, तो ये बन रहा है FMN. और अगर इसमें AMP जुड़ गया तो ये क्या बन गया? FAD. So this is the second vitamin, that is B2, riboflavin, FAD and FMN. There are the components, and that is why they are produced. This is the vitamin B2. So third one is niacin, that is B3, which is also called nicotinic acid, है ना? Nicotinic acid, और कैसे फॉर्म होता है? ट्रिप्टोफैन से, with the help of B2 and B6 vitamin, iron, and the production of niacin is occur. So ये क्या है? एक pyridine derivative है. एक्टिव फॉर्म जो है इसकी NAD और NADP पॉजिटिव है. ठीक है, निकोटीनिया अमाइड
और निकोटीनिक एसिड में देर इज़ वन डिफरेंस कि निकोटीनिक एसिड में देर इज COH ग्रुप इज प्रेजेंट विच इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड निकोटीनामाइड में देर इज अमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट. ठीक है. सो डेफिशिएंसी ऑफ B3 दैट इज नियासिन लीड्स टू पेलेग्रा. ठीक है. दैट इज दिस मीन D3 अकर विद dementia, diarrhea and dermatitis. So the third vitamin is B5, that is pantothenic acid. It is the component of coenzyme A. Coenzyme A मतलब they are responsible for the acyl group transfer. ठीक है. They are responsible for acyl group transfer. इसका component है ये, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं फिर, acyl carrier protein, that is ACP. ओके. और इसके 2 फंक्शंस हैं. एक तो ये असाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ओके. और दूसरा ये जो असाइल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन है ना, उसकी एक्टिवेशन करता है. ठीक है. सो दिस इज़ द fourth vitamin which is known as B5. Then the fifth vitamin is B7, that is biotin, which is also called vitamin H. इसका क्या है, इसमें there is a ring which is not imidazole ring and thiophene ring. valerian acid के साथ इसका actually COH और इसका NH3, मतलब इसका amide group एक एंजाइम के साथ लिंक होता है, which is the whole molecule is also called biocytin, है ना. सो ये हेल्प करता है कार्बोक्साइलेशन रिएक्शन में. ठीक है. यूज बाय कार्बोनेट एज एजेंट. इट इज़ प्रेजेंट वाइडली इन द फूड, दैट इज़ एग योक में ये वाइडली होता है. जैसे एग योक में बायोटिन प्रेजेंट होता है और एविडिन प्रेजेंट होता है. और इसको हम बाकी जैसे अपनी टेक्निक्स होती हैं, वी यूज़ देम इनटू टेक्निक्स ऑल्सो. ओके. सो जो होमोलोग है एविडिन का, वो हम स्ट्रेप्टोमाइसिस एविडिनी से भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको. दिस इज़ द फिफ्थ दैट इज़ वाइटामिन. सो B9 इज़ फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, टैरिन रिंग होती है इसमें और P अमाइनो बेंजोइक एसिड प्लस ग्लूटामिक एसिड से ये एक कंपोनेंट बनाता है, विच इज़ नोन एज द होल इज नोन एज द फॉलिक एसिड, है ना, फॉलिक एसिड. एंड इसकी जो बायो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है दैट इज़ अपनी टेट्राहाइड्रोफोलेट. ये ट्रांसफ़र करता है कार्बन ग्रुप को. ठीक है. और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है. और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया लीड्स टू मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, है ना. एंड द नेक्स्ट वाइटामिन इज़ B6, दैट इज़ पायरोडॉक्सिन इसको बोलते हैं. देयर आर 3 bioactive form otherwise, pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. Pyridoxine जो है they are present in the plant products, and pyridoxine and pyridoxamine जो है they are present in animal related products. So this is the structure, this is the benzene ring, है ना, बेंजीन रिंग. और इसमें क्या होता है, ये ग्रुप होता है. ठीक है. अगर CH2OH ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड पायरोडॉक्सिल. अगर इसकी जगह CHO ग्रुप जुड़ जाता है, दिस इज नोन एज पायरोडॉक्सिल. और अगर इसकी जगह CH2NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड पायरोडॉक्सीमाइन. ठीक है. दिस इज द बेसिक ऑफ, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द vitamins, है ना. द स्ट्रक्चर्स गिवन और आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दे आर द basic chemistry of the vitamins. So they act as coenzyme in paradoxal phosphate enzyme. ठीक है. ये किन रिएक्शंस में काम करते हैं, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, दैट इज जो अमाइनो एसिड से कीटो एसिड्स बनाते हैं ना, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन. फिर आगे आपका जो अल्फा बीटा डीकार्बोक्साइलेशन होती है एल्डोल रिएक्शंस में, और बीटा एंड गामा एलिमिनेशन में इनकी हेल्प होती है. इसकी क्या, अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेलेग्रा लाइक इसकी सिम्टम्स आते हैं कुछ, एंड अनीमिया इसकी एक ऑल्सो डिजीज कॉज्ड बाय इट. सो द नेक्स्ट वाइटामिन इज कोबलामिन, दैट इज कोबलामिन इज देयर, है ना. सो B12 एंड इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं. एक कॉरेंट रिंग होती है इसमें, और एक होता है 5,6 डाइमिथाइल बेंजा इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड. सो इसमें क्या होता है, कॉरेंट रिंग, दिस इज कॉरेंट रिंग, है ना. कॉरेंट रिंग होती है इसमें. इसमें R ग्रुप होता है. R ग्रुप कैन बी CN, है ना. देयर इज अदर विच आर एक्ट एज ना CH3. तो ये R ग्रुप कैन बी मैनी. और ये कॉर्नर रिंग होती है, इसके सेंटर में कोबाल्ट आयन प्रेजेंट होता है जिसके साथ ये सब जुड़ा होता है. और इसके साथ जो है ये जो अपनी एक
अब हमने अभी एक फॉर्म बताया, दैट इज़ 5,6 डाइमिथाइल बेंजोइमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये अटैच होता है। और इससे जो बीमारी, मतलब जो डेफिशिएंसी से अगर हमें कोई बीमारी होती है, परमिशियस एनीमिया बोलते हैं, और इसमें न्यूरोलॉजिकल मैन्फेक्शंस की मैलफंक्शंस का भी खतरा रहता है। देन द लास्ट वन इज़ विटामिन सी, इट इज़ नॉट इन द बी कॉम्प्लेक्स, है ना, इट इज़ अ डिफरेंट विटामिन C, which is known as ascorbic acid. It's a carbohydrate, it's a small carbohydrate molecule, है ना, and a strong reducing agent होता है ये plant and animal products में होता है, for example it in citrus fruit, guava, है ना. Lack of the L-gluno gamma lactone oxidase, it is not present in us, है ना, so we cannot synthesize them, vitamin C, so we consume them in our diet. हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन जो हैं, जो कोलेजन में होते हैं, जैसे प्रोलीन में, और हाइड्रोक्साइलेशन कर देते हैं प्रोलीन की और लाइसिन की, तो ये विटामिन सी जो है एज अ कोएंजाइम वहाँ पे काम करता है ना, वहाँ पे को फैक्टर की तरह वो काम करता है, मतलब विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट देयर. देन if there is any deficiency leads to scurvy, delayed wound healing and connective tissue की मतलब फॉर्मेशन नहीं होती उस तरह से. और इसका ये कैसे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्टेरॉइड सिंथेसिस में हेल्प करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम करता है, बोन फॉर्मेशन में काम करता है. इट इज़ पुअरली प्रेजेंट इन दैट इज़ मिल्क. ये मिल्क में जो है वो पुअरली प्रेजेंट होता है. नाउ वी कैन इसको हम एक एक्यूमुलेट चार्ट में वी कैन गैदर इट, कि जो विटामिन B1 है वो करता है, उसमें थायमिन प्रेजेंट होता है, या और उसकी वो करवाता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. क्या करवाता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो कौन सी है, TPP, है ना, थायमिन पायरोफॉस्फेट. देन B2 इज़ देयर विच इज़ नोन एज राइबोफ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन, एंड राइबोफ्लेविन इज़ प्रेजेंट. और ये इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो FAD एंड FMN है ना, और ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में यूज़ होता है. देन देर इज़ V3 विच इज़ नॉन एज नियासिन, है ना, और इसमें जो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो NAD एंड NADP है, और है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काम करता है. देर इज़ another vitamin B5 which is known as pantothenic acid, है ना, पैंटोथेनिक एसिड. एंड ये कोएंजाइम E का कंपोनेंट होता है, असाइल ग्रुप पर ट्रांसफ़र में हेल्प करता है. ठीक है. B6 इज़ देयर, B6 इज़ पायरोडॉक्सिन. सो पायरोडॉक्सिन जो है वो ट्रांसअमाइनेशन, है ना, ट्रांस या ग्रुप ट्रांसमिनेशन रिएक्शन में हेल्प करता है. और देर इज़ अनदर विच इज़ नोन एज B7 विच इज़ नोन एज बायोटिन, है ना, बायोटिन एंड एबिडिन वाला जो बात की थी. और इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है, बायोसाइटिन, जो मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ पे अमाइड और COH, है ना, विद विलेरिन एसिड के साथ जो कंपोनेंट होता है. और ये जो है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है ना, कार्बोक्सिलेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कार्बोक्सिलेशन, कार्बन का कार्बोक्सिलेशन करता है ना. और कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन कौन से 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, CO2, ATP एंड बायोटिन. दे आर मतलब 3 कंपोनेंट विच आर यूज्ड इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना. द नेक्स्ट वन इज़ B9 विच इज़ फॉलिक एसिड. ठीक है. इसकी एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट, है ना, इसमें भी 1 कार्बन इसको ट्रांसफ़र होता है, और ये अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए काम करता है. देन B12 इज़ कोबलामिन, है ना, कोबलामिन रिएक्शन. और ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट और इंट्रामोलिकुलर जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको लिए वो काम करता है. ठीक है. सो दिस इज़ द फॉर्म्स. सेकेंड जो अपना B1 है उसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ होती है. ओके. एंड बेरी डिजीज़ होती है. देन अगर हम B2 की बात करें तो उससे होती है आपकी ग्लॉसिटिस, है ना. B3 से आपका पेलेग्रा होता है. ओके. एंड
जो आपका B9 है उससे आपको ये दीज आर द मेन, दे आर आस्क्ड इन एज MCQs, दे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और B12 से जो है आपको परनीशियस अनीमिया होता है, और परनीशियस अनीमिया, और जो विटामिन C है उससे आपको स्कर्वी। ओके, सो दीज आर द मेन functions, basic structure and functions of the vitamins, and disease or deficiencies leads to what. So hope you like the video. Please like, share and subscribe.